Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall have a lecture related to our poem 7, that is related to animals. In this poem we shall find that poet Walt Whitman likes animals so much because he thinks that whatever the quality which should be there in human being, those are not there in human being nowadays. Those quality are there in animals. So due to that reason, poet wants that he should have the company of animals because those animals don't have any habit of jealousy, hate, etc. Whatever the bad habit, whatever the negative trait the human being have, such type of traits, such type of qualities are not there in animals. So due to that reason, he likes the company of animal. Now let's start our first stanza. Here poet says, I think I could turn and live with animals. Poet demands that he should live with animals. कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं एनिमल के साथ अपना जीवन यापन करूँ. Why? Because they are so placid and self-contained. Placid means peaceful, calm. Because poet thinks that animals are so peaceful and so self-contained, means those animals have no any dependence on other creature. They are self-dependent. They have whatever the things they want, whatever the things they require. So due to that reason, the poet wants that he should stay with animal, in company of animal. Next, he says, I stand and look at them long and long. He says that he should stand there in company of animals and he should see the animal long and long. Means he wants to watch the animal's activity for a long period of time. वो एनिमल को देखते रहना चाहता है. लॉन्ग एंड लॉन्ग मीन्स इन कंटिन्यूस वे. नेक्स्ट स्लाइड. दे डोंट स्वेट एंड whine about their condition. Animal don't sweat. They don't do such type of struggle which is done by the human being. Because of that reason, the human being are there in form of having sweat on their body. ये कहता है कि मैं नहीं चाहता, ये क्या नाम है, पोएट कहता है कि वो नहीं चाहते, दे डोंट स्वेट, वो आदमी की तरह पसीना नहीं बहाते. एंड वाइन अबाउट मीन्स they don't do any type of complaint about their condition, whatever the condition, in which condition they have been put by the God, they don't have any complaint about that condition. Whatever the condition they have, they think it as their luck, and due to that reason they accept it with lot of happiness. They don't have any complaint regarding their condition. अपनी कंडीशन से संबंधित, अपनी स्थिति से संबंधित उनको कोई शिकायत नहीं होती, जिस तरह से
ह्यूमन बींग शिकायत करता रहता है. सम ऑफ द ह्यूमन बींग that we have so much poverty. Some will say we don't have power in our hand. So such type of complaint is there in front of human being, but in front of animal such type of complaint are not there. They don't lie awake in the dark. They means animal don't lie awake. Animal don't wait till late night in presence of darkness. They don't lie awake. कहता है कि वो ज़्यादा समय तक नहीं जागते. अवेक मीन्स जागने की अवस्था में रहना. अंधेरे के अंदर पशु जो है आदमियों की तरह लंबे समय तक जागृत नहीं रहते. किस लिए? एंड वीप फॉर देयर सिन. सिन मीन्स वट एवर द बैड वर्क, वट एवर द बैड एक्शन टेकन बाय देम. दे डोंट हैव एनी रिग्रेट. दे डोंट वीप over those bad action done by them, because they don't do any type of bad work. वो कोई बुरा काम करते ही नहीं. बुरा काम नहीं करेंगे तो वो पाप के अधिकारी नहीं होंगे. सिन मीन पाप. पाप के अधिकारी नहीं होंगे तो उन्हें कोई डर नहीं सताएगा. अंधेरे में लंबे समय तक जागने का ऐसा कोई डर उन्हें महसूस नहीं होगा, क्योंकि डर उसी व्यक्ति को, उसी जीव को होता है who does any wrong action. जब कोई जीव बुरा कार्य करता है, जैसे इंसान करता है, सुबह से लेकर शाम तक बैक बाइटिंग करता है, चुगली करता है, चर्चा करता है दूसरे लोगों की, और तरह तरह के दूसरे लोगों से नफ़रत करता है, दूसरे लोगों से जेलसी फील करता है. बहुत सारी बुराइयां हैं, कमियां हैं. बट सच टाइप ऑफ वीकनेस, सच टाइप ऑफ सिन आर नॉट डन बाय एनिमल्स. सो ड्यू टू दैट रीजन द पोएट वांट्स टू हैव द कंपनी ऑफ एनिमल्स. और इसी कारण पोएट जो है पशुओं का साथ रखना चाहता है. दे डोंट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. They meant for animal. Animal don't make me sick. कहता है कि जो पशु हैं वो मेरे को क्या नाम है, सिक नहीं बनाते, मूर्ख नहीं बनाते, बीमार नहीं बनाते. सिक मीन्स बीमार करना. कहता है कि वो मेरे दिमाग पर टेंशन पैदा नहीं करते, वो मेरे को बीमार नहीं करते. क्या करके? डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. कि उनकी भगवान के प्रति क्या फ़र्ज है, क्या ड्यूटी है, इस बारे में मेरे साथ चर्चा करके वो मेरे को क्या नाम है, तंग नहीं करते, वो मेरे को बीमार नहीं करते. यानी बीमार, टू मेक सिक मीन्स टू मेक अनहैप्पी. कहता है कि वो मेरे को नाराज़ नहीं करते. भगवान के प्रति उनकी क्या ड्यूटी है इस बारे में डिस्कस करके. मीन्स दे आर हैप्पी वट एवर द सिचुएशन दे आर हैविंग. जो भी स्थिति वो ग्रहण कर रहे हैं उसमें वो खुश होते हैं, उनको कोई शिकायत नहीं होती. नेक्स्ट, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड. नॉट वन means no animal is dissatisfied. कोई भी पशु जो है वो असंतुष्ट नहीं होता. Not one is demented with the mania of owing things. And not one means no animal is behaving. Demented means to behave in irrational way, and no animal
बिहेव्स इन इरेशनल वे, कोई भी पशु इरेशनल वे से अतार्किक ढंग से व्यवहार नहीं करता। विद द मैनिया, मैनिया मीन्स विद द क्रेज, एक ऐसे उत्साह के साथ, एक ऐसे पागलपन के साथ, क्रेज का मतलब पागलपन, ऑफ ओइंग थिंग्स, चीज़ों के ऊपर अधिकार स्थापित करने वाला पागलपन। यानी ह्यूमन बीइंग हैव द बैड हैबिट ऑफ कीपिंग वन थिंग आफ्टर द अदर थिंग, वन थिंग आफ्टर द अदर थिंग इन देयर पोसेशन। ह्यूमन बीइंग क्या करता है, एक चीज़ को अपने अधिकार में लिया, उसको अधिकार में लेने के बाद फिर दूसरी चीज़ को अपने अधिकार में लेने की सोचता रहता है। बट एनिमल डोंट हैव एनी टाइप ऑफ बैड बिहेवियर इन irrational way with their courage of having the possession of so many things। उनके यहाँ, पशुओं के यहाँ बहुत सारी चीज़ों को रखने का, जोड़ने का, अधिकार स्थापित करने का उनको कोई शौक नहीं होता, ना ही वो इस तरह का शौक पालते। नॉट वन नील्स टू अनदर मीन्स नो एनी एनिमल, नील्स मीन्स बैंड्स, बैंड्स टू अनदर मीन्स बैंड्स बिफोर अदर एनिमल। कोई भी पशु जो है वो नहीं झुकता, नील्स मीन्स झुकना, बैंड्स घुटनों के बल बैठना। कोई भी पशु जो है वो घुटनों के बल नहीं झुकता दूसरे पशु के सामने। जैसे ह्यूमन बीइंग जो है अपने सेल्फिशनेस के कारण, अपने स्वार्थ के कारण जो है दूसरों के सामने गिड़गिड़ाता है, दूसरों के सामने रिक्वेस्ट करता है, उनके पांव पकड़ता है। तो ये ऐसा एनिमल नहीं करते। नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो मीन्स what are the animal which lived so many years ago, which lived in past, those animal also didn't have such type of habit which the human being are having। वो पशु जो हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले हुए हैं, उनमें भी ऐसी आदत नहीं थी दूसरे पशुओं के सामने झुकने की। लेकिन ह्यूमन बीइंग की एक वीकनेस है, वीक पॉइंट है, एक कमजोरी है, वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के सामने झुकता है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल इन सोसाइटी ऑफ एनिमल, नो वन इज सो रेप्यूटेड, सो रिस्पेक्टेबल। यानी पशुओं का जो समाज है उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई उच्च पद और कोई निम्न पद नहीं है। ऑल आर इक्वल, सभी समान हैं, इसलिए सभी रिस्पेक्टेबल होते हैं। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, कोई जो है वो ज़्यादा आदरणीय नहीं होता, यानी सबका एक जैसा सम्मान होता है, सब एक जैसे रिस्पेक्टेबल हैं। और अनहैप्पी, ना ही कोई नाराज होता ओवर द होल अर्थ, ये अर्थ है पूरी धरती पर, यानी पूरी धरती पर ना ही कोई पशु आपको नाराज दिखाई देगा किसी दूसरे व्यक्ति के, किसी दूसरे पशु के होने वाले सम्मान के को देखकर। लेकिन ह्यूमन बीइंग में क्या वीकनेस है, व्हेन एनी ह्यूमन बीइंग सी द ओनर इन फ्रंट ऑफ हिज आईज, then that human being start to have jealousy in his heart regarding that person who is having that type of honor in front of him। लेकिन आदमी की कमजोरी ये है कि आदमी अपने सामने दूसरे व्यक्ति का होता हुआ सत्कार, आदर नहीं देख सकता, वो जेलसी फील करता है मन ही मन।
So they show their relation to me. Check the timing. So they show their relation, इसलिए वो अपना रिलेशन, अपना संबंध दिखाते हैं टू मी, मेरे साथ. एंड आई एक्सेप्ट देम, एंड आई एक्सेप्ट देयर रिलेशनशिप. यानी पशु जो है वो अपना संबंध मेरे साथ स्थापित करना के लिए दिखावा करते हैं, दिखाते हैं, वो संबंध बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं उनके संबंध को स्वीकार करता हूँ. दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ. टोकन मीन्स क्वालिटीज. दे ब्रिंग मी क्वालिटीज ऑफ माई सेल्फ. Quality of myself means quality of human being. Whatever the quality a human being should have, such type of qualities are brought in front of us, in front of me. And who is the person to bring those quality? That is animal. कहता है कि वो मेरे अंदर वो गुण पैदा करते हैं जो मेरे अपने गुण होते हैं. यानी एज ए ह्यूमन बीइंग, वट एवर द क्वालिटी विच आई हैव लॉस्ट, दोज क्वालिटी आर ब्रोट इन माई कैरेक्टर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनिमल. जो गुण आदमी के अंदर होने चाहिए वो गुण लेकर आते हैं पशु मेरे अंदर. दे evince them plainly in their possession. Evince means they show, they indicate them plainly in their possession. और वो दिखाते हैं स्पष्ट रूप से जो क्वालिटी उनके पोसेशन में, अधिकार में होते हैं, उन क्वालिटी को, उन गुणों को मेरे सामने प्रस्तुत करते हैं और मैं उन गुणों को ग्रहण करता हूँ. अब वो गुण कौन से हैं, वो क्वालिटीज़ कौन सी हैं? दोज आर द क्वालिटी ऑफ कामनेस, यानी नम्रता की क्वालिटी, और दूसरी जो है वो कह सकते हैं टॉलरेंस, सहनशीलता की क्वालिटी, सहनशीलता का गुण. तो ये कुछ क्वालिटी, और इसके साथ काइंडनेस, दयालुता का गुण, ये सब क्वालिटी जो है वो एनिमल के द्वारा दिखाई जाती हैं, पैदा की जाती हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर. एंड द पोएट एक्सेप्ट दोज क्वालिटी. और पोएट जो है उन क्वालिटी को स्वीकार करता है. आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स. कहता है मुझे हैरानगी होती है कि वो कौन, एयर दे इज यूज फॉर एनिमल्स. कहता मुझे हैरानगी होती है कि वो यानी पशु, एनिमल्स, वो क्वालिटीज़, टोकन मीन्स क्वालिटीज़ कहाँ से लाते हैं, कहाँ से उन्हें प्राप्त होते हैं. Did I pass that way huge time ago? Huge time ago means before large period of time. कहता did I pass? I means poet. Poet means human being in form of human being. कहता है क्या एक मानव के रूप में मैंने वो क्वालिटीज़ बहुत लंबे समय पहले पशुओं में दे दी, पशुओं को हैंड ओवर कर दी. एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और नेग्लिजेंटली मीन्स इन अ केयरलेस मैनर, और बेपरवाह होकर, यानी केयरलेस वे से, केयरलेस ढंग से, असावधानीपूर्वक ढंग से, क्या वो क्वालिटी मैंने त्याग दी? और क्या वो गुण, वो क्वालिटी जिसमें क्वालिटी ऑफ काइंडनेस, दया के गुण, और उसके साथ टॉलरेंस, सहनशीलता का गुण,
और उसके साथ कामनेस, नम्रता का गुण। क्या मैंने यानी एज ए ह्यूमन बीइंग, मानव के रूप में, क्या मैंने उनका परित्याग किया, क्या मैंने उनको छोड़ा, और क्या हमारे से ही एनिमल ने वो क्वालिटी ग्रहण की। तो here poet says that I don't know from where those quality of human being are there in those animals. What are the quality which should be there in heart and mind of human being? Those qualities are not there in possession of human being. Those are there in possession of animal. And poet says that perhaps we ourselves gave those quality to those animals before large period of time. काफ़ी लंबे समय पहले शायद कहता है कि हमने ही ये गुण एक आदमी के रूप में, एक मानव के रूप में हमने ही ये गुण शायद पशुओं को दिए होंगे। हमने इन गुणों को त्यागा होगा, छोड़ा होगा, और पशुओं ने इन गुणों को स्वीकार किया होगा। कहता है कि ये गुण आदमी के गुण हैं, ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं। दो शुड बी देयर इन पोसेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इंस्टेड ऑफ in the possession of animals. So this was the poem. You will read this poem and try to understand whatever the theme of the poem, and you will try to find the question answer. We shall discuss question answer in next video. Okay, thanks.